जैसे हिस्ट्री आ गया, तो हिस्ट्री में अपने क्लास में कर लिया, तो इन योर आंसर्स व्हाट विल ऐड वैल्यूज, हाउ मेनी डेट्स कुड यू रिमेंबर. मतलब ऐसे नहीं कि डेट्स का रट्टा लगाना है, बट certainly if a person who is checking the paper of history will expect you to at least mention some years. And then there are hallmarks of every movement that we do in history. There is some particular feature which you could readily quote in introduction. जैसे Swadeshi movement, it is always said that it was the first political awakening in the country. So use these hallmarks. ये सब बुक्स में लिखा है. What you need to do is one distinguishing feature of every movement. For example, in non-cooperation, it was first time extra constitutional means of struggle was used. So that is the hallmark of that movement. So ऐसे hallmarks find करो हर एक movement के, हर एक event के, what watershed impact it had on history. And then there are maps. जैसे 1857 का रिवोल्ट हुआ, अगर मैप ये भी बहुत हैंडी होनी चाहिए आपकी ना. मतलब you should be able to draw maps very quickly. This is a skill which will help you throughout your mains preparation. अब अगर 1857 का क्वेश्चन आया, ठीक है, आप ये साइड में मैप बना के इधर जितने भी नर्व सेंटर्स हैं, दिल्ली, इलाहाबाद, मेरठ, झांसी, ये सब आप उधर मेंशन कर दो. दैट विल श्योरली ऐड वैल्यू टू द मेंस आंसर. एंड मैप मेकिंग नॉट ओनली जैसे बड़े बड़े मैप्स, ये शीट होती है ना, ये फोटो, सो जगह 2 पेज ही होती है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज ऐसे ना सर्कल सा मार के तो कितनी स्किल होनी चाहिए. ये 10 to 15 सेकेंड में बन गया, बट ये आधे से एक नंबर दे देगा, आधा नंबर तो देगा. और नॉट ओनली इंडियाज मैप, but you'll have to remember world's map as well. ये आगे भी बहुत काम आएगा. तो ये तो मोटा मोटा जैसे बिल्कुल रफ, इससे बस पता लग रहा है कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे है. ये सारे ऑस्ट्रेलिया आ गया, इंडोनेशिया, इंडिया आ गया, अफ्रीका आ गया, ठीक है. एंड इसको भी बॉक्स में इंक्लोज करना आना चाहिए. जैसे अगर ये A4 शीट है तो एक छोटे से बॉक्स में इसको इंक्लोज करना आना चाहिए. और इसके अलावा व्हाट यू नीड टू डू इज, स्पेशली इन इंटरनेशनल रिलेशंस, जैसे आपकी A4 शीट है, इसकी इतने से बॉक्स में इफ यू हैव टू, देयर इज अ क्वेश्चन ऑन क्वाड जो इट्स डायमंड डेमोक्रेसीज का जो है. So what you could simply do is mark India, mark Australia, mark Japan, mark USA, and make a diamond out of it. And write here quad diamond democracies. ये quad का क्वेश्चन आया. ठीक है, ये जो इतना सा आपका एस्पेक्ट है ना, this will not only create an aesthetic visual appeal in your answer, but it will add significant value in your answer as well. So इन चीज़ों पे प्रैक्टिस करवाओ. Maps are a must. हिस्ट्री के बाद आ जाता है सोसाइटी. सोसाइटी में व्हाट यू कैन डू इज रियल लाइफ एग्जांपल्स, एनेक्डोट्स, एंड सम गुड पर्सनालिटीज व्हिच यू कैन डू. सोसाइटी में भी देयर आर केसेस, सोशल केसेस, सोशल verdicts of Supreme Court that can be readily quoted in society. Then we have geography. Geography में there are diagrams and there are maps.
मैप्स जैसे मैंने बता दिया, ये वाले मैप मेकिंग, बोथ zoomed मैप एंड फुल मैप, तो ये दिस विल हेल्प यू लॉट। देन ये GS2 में आता है पॉलिटी। पॉलिटी में आर्टिकल्स, if there is a question on parliament, if there is a question on log jams in bills, you should remember what article bills get passed and what is the article related to parliamentary committees. तो ऐसे articles remember करो current affairs के। It's better to go through articles, all the articles in polity. Polity में Supreme Court की verdicts, they help a lot. Then there are doctrines, doctrine of essentiality, like अभी जैसे सबरीमाला पे आया था वर्डिक्ट, तो what they were asking is कि whether it's right on the part of Supreme Court to intervene or not. So Supreme Court has a set doctrine of essentiality. They see what practices are integral to the religion and what practices are not integral to the religion. And those practices which are integral, उनको नहीं वो छेड़ते, but the practices which are non-essential and that they can constructively intervene. So what the Supreme Court does is, using this doctrine of essentiality or doctrine of integral practices, so they intervene constructively in those practices which are not integral. So ऐसे you can quote these such kind of doctrines. Supreme Court की verdict है, जैसे UCC है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो इस पे पन्नालाल बंसीलाल एक केस है, तो उसमें वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि करंटली UCC might threaten the unity and integrity of the nation. So it is not desirable. So आपके पास एक काउंटर ओपिनियन का प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट का चैनल है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा होगा, तो इफ यू वांट टू कंक्लूड कि अभी इस टाइम पे UCC it will be counterproductive, so you can quote Supreme Court and use it in your conclusion. Then is governance. Governance में there are indices and there are initiatives of the government. And then there are international models. अब जैसे हर साल ना there is a good governance world development index, उसमें जो countries which are governed very well in different areas वो आते हैं। जैसे ये जो social indicators हैं में फिनलैंड और नॉर्वे, ये वाली countries का बहुत ऐसे रहता है। So you can always write in some social indicators पे, अगर HDI में कुछ क्वेश्चन आता है लास्ट में कि this is the international best practice in Finland and India should try to emulate the best part of this model into its own governance structure. और या फिर एक easy सा part ये होता है कि हर साल एक governance index आती है, उसमें एक country को top पे, जैसे last time I checked it was South Korea, तो you could always write कि South Korea की governance बहुत अच्छी है, world governance index में सबसे ऊपर आई है, so let it we should try to copy the best practices from there. But copy, we should try to imbibe, absorb. And then we have IR. IR में जैसे when you are reading newspapers, so you can definitely add quotations. जैसे अफगानिस्तान पे अगर कोई अच्छा columnist जो who is well known, वो लिख रहा है, जैसे ऋषभ पंत लिख रहे हैं या सी राजा लिख रहे हैं, so you can use their lines into your answers, into your conclusion, into your introductions. एंड IR में मैप्स बहुत रेडी, जैसे मैंने बोर्ड की एग्जांपल दी थी, मैप्स बहुत रेडी टू यूज होते हैं। हर एक आंसर में IR की यू कैन यूज अ मैप ऑलवेज। तो IR में मैप्स आर वेरी हैंडी, स्पेशली दो जूम्ड इन मैप्स, स्क्वायर बना के जूम करके एरिया मैप बना दो, सो मैप्स आर हैंडी इन IR। देन वी हैव GS3। GS3 में इकोनॉमी में डेटा इज द मस्ट, हर एक चीज़ को लेकर डेटा है। GS3 का वैल्यू एडिशन करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि इसमें जैसे अगर इवेंट्स फॉर इकोनॉमी, GDP के इंडिकेटर्स, अनएम्प्लॉयमेंट के, एग्रीकल्चर के अलग है, एग्रीकल्चर के अलग, एग्रीकल्चर ग्रोथ के अलग है, एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट के अलग है, फिर एग्रीकल्चर में कितनी इरीगेशन हो रही है, सॉइल कितनी डिप्लीट हो रही है, वाटर टेबल कितना डाउन जा रहा है, फर्टिलाइजर कितने यूज़ हो रहे हैं इंडिया में। तो ये इतनी चीज़ें मतलब याद रखनी, मुझे अभी याद है सर 25 मिलियन टन फर्टिलाइजर यूज़ हो रहा है उस टाइम। तो ऐसी चीज़ें, कितना परसेंटेज पंजाब का 55 सेंटीमीटर पर ईयर डाउन जा रहा है वाटर लेवल। सो दीज आर समथिंग्स वी कैन रेडिली कोट एनीवेयर
कभी ऐसे में यूज़ हो जाएंगे आपके, कभी इवन इन इंटरव्यूज व्हेन यू गिविंग एन ओपिनियन पूछ लेंगे पंजाब में मुझे पूछ सकते हैं वाटर टेबल डाउन जा रहा है, तो आई विल स्टार्ट यस सर इट्स अ डायर सिचुएशन हियर 55 सेंटीमीटर के लिए नीचे जा रहा है वाटर एंड दिस वी हैव टू डू, सो दिस मेक्स वैल्यू टू योर आंसर्स, ऐसे यू ग्रो. सिक्योरिटी में देयर इज अ पीस इंडेक्स एंड सिक्योरिटी में देयर आर एग्जांपल्स लाइक अगर कोई साइबर अटैक हुआ है रिसेंटली, तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हो तो ऑलवेज कीप अ लिस्ट ऑफ साइबर अटैक्स. जोमेटो पे हैक हुआ था, देन कुदमकुलम न्यूक्लियर प्लांट उस पर हैक हुआ था, बिग बास्केट था उसका इंफॉर्मेशन लीक किया था सारा. तो दीज आर द साइबर अटैक्स which India faced. Ransomware, malwares बहुत आ रहे हैं ना, malwares उनके नाम याद रखने चाहिए, because अगर malware पे क्वेश्चन है always start it recently यहाँ पे आया. अच्छा, स्टार्ट करने के बहुत तरीके हैं आंसर्स को स्टार्ट करने के. वन इज द डेफिनेशन बेस्ड स्टार्ट इनटू योर क्वेश्चंस. सेकंड इज फैक्ट बेस्ड स्टार्ट, जैसे अगर वाटर टेबल है तो वाटर टेबल का आपको फैक्ट्स याद है उस पर स्टार्ट हो जाता है. थर्ड देयर इज एनेक्डोट बेस्ड स्टार्ट व्हिच वी यूज in ethics and essays and case studies. There are different strategies to start with. So, in science and tech वैसे तो सब करा देते हैं काफ़ी वैल्यू ऐड. उसके अलावा you could use quotations. न्यूक्लियर पे है जैसे कलाम सर की है. Then in science and tech you would always draw diagrams. अगर जीवन पे आ गया तो you could always ड्रॉ क्रॉस पॉलिनेशन कैसे उनकी बेयर करते हैं फिर हो जाती है इनकी टाइप से. जैसे हम क्लास में बनाते हैं टाइप, वो खाली समझाने के लिए नहीं, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आए तो आंसर में बनाओ. एंड इन एनवायरनमेंट बेसिकली देयर आर इंडिसेस. फॉर एग्जांपल पोल्यूशन है तो उनकी सारी इंडिसेस हैं. देयर आर बेस्ट प्रैक्टिसेस. सबसे ज़्यादा जो बेस्ट प्रैक्टिसेस काम आएंगी ना वो आपको इधर आएंगी एनवायरनमेंट. And there is a document of Niti Aayog on best practices in India of various states. उसमें एक पूरा डॉक्यूमेंट है कि जैसे केरला में है तो कम्युनिटी पुलिसिंग उधर होती है, तो वहाँ उन्होंने उसका दिया हुआ कैसे होती है, तो वो बुक ज़रूर पढ़ो. उससे आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स में कैसे कैसे कंक्लूजन आनी है, रेडिली कुड कंक्लूजन आनी है. ये जैसे एंड में डाल दिया गया पुलिस रिफॉर्म्स पे है. So the future lies in community policing, when the community works hand to hand with the police in securing the law and order situation. So you could use Kerala model there. Then there is GS4. GS4 में जैसे मैंने बताया करंट की एग्जांपल्स आ सकती हैं. करंट की एग्जांपल्स जनरली नेगेटिव, कि जैसे अगर फेलियर ऑफ एथिक्स है तो कोई स्कैंडल या कुछ को. अब देयर आर एग्जांपल्स फ्रॉम पब्लिक लाइफ, जैसे मदर टेरेसा, APJ सर हैं, लाल बहादुर शास्त्री सर. यू कुड ऑलवेज कोट देम. फिर एक सिविल सर्वेंट्स की लिस्ट है, जैसे आर्मस्ट्रॉन्ग काम है इनोवेशन के लिए, उन्होंने पीपल्स रोड बनाई थी असम में ना. तो व्हाट ही डिड वाज, वहाँ पे रोड नहीं होती थी असम में, तो ही क्राउड फंडेड. उन्होंने अपील की सभी को 10-10, 5-5 जितने रुपए डाले इस फंड में डालो, एंड फ्रॉम दैट ही मेड अ पीपल्स रोड, कि उधर रेजिडेंट्स की मनी से ही रोड बनी. सो ही गॉट वेरी फेमस फॉर दैट. एक यूसुफ गायब सर हैं, ऐसे चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर्स जो पीछे रहे हैं 60-70, दे आर वेरी गुड. यू कैन रीड अबाउट दो सिविल सर्वेंट, मोस्ट इंस्पायरिंग सिविल सर्वेंट्स टू डेट. गूगल पे सर्च मारना और हर एक सिविल सर्वेंट में एक एक ट्रेड दी चाहिए. इवन एस जयशंकर जो हमारे करंट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, तो ही वाज एन एक्सीलेंट IFS ऑफिसर. मतलब उनकी अगर आप कभी एज एन IFS ऑफिसर स्पीचेस सुनोगे तो इट वाज ब्रिलियंट, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. It's certainly a privilege that at this point of time we have him as a minister. And one personal example, if you can relate something. एथिक्स में ऐसे चलता है काम. सो ये मोटे ये चीज़ें तब आती है जब आपने सिलेबस कर लिया है,
and you have done it from one or two sources additional, and now you're looking at how to secure my chance into the mains list, the mains qualifying list. तो उसके बाद चीज़ें आती हैं, ये थर्ड स्टेप है ये सारा जो आपको करना होता है अपनी प्रिपरेशन. So my best wishes to you, and may you all prepare well and prepare with all your sincerity, because this exam deserves the most sincere people. This is what I wish, and may the most deserving get the seat. And कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो सर के थ्रू मिल लो, ping me on social media, anywhere. I'm always there. Okay? Okay, thank you.